ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રફુલ્લભાઈનું, જ્યાં શુભકામના અને શુભ ભાવનાનું ઝરણું વહી રહ્યું છે. આ આધ્યાત્મિક મેળાને સુંદર રીતે સફળ બનાવવા માટે દરેક આત્માઓએ પોતાના તન, મન અને ધનથી સેવા કરી પરમાત્માના આ વિશ્વ કલ્યાણના કાર્યમાં સદા સાથી અને સહયોગી રહ્યા છે. આવા વિરલ વિભૂતિઓની મહિમાનું, પ્રશંસાનું એક સુંદર નૃત્ય લઈને આપણી સમક્ષ આવવા માટે કુમારીઓ ઉત્સાહિત છે. તો હું આમંત્રિત કરું છું રચનાબેન એન્ડ ગ્રુપ. નૃત્યના શબ્દ છે, ગાતા રહે મેરા દિલ તેરી પ્રશંસા બાર બાર. धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते
ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આ કુમારીઓનો, જેમણે નૃત્ય દ્વારા દરેકનો ધન્યવાદ, દરેકની પ્રશંસા કરી. હવે હું આમંત્રિત કરું છું અશોકભાઈને, ચેરમેન દૂધસાગર ડેરી મહેસાણા. આપની શુભકામના અમારી વચ્ચે રાખશો. સત્કાર્ય આપની શોભા છે, સજ્જનતા આપની સુવાસ છે, પ્રસન્નતા આપનું જીવન છે, પરોપકાર આપનું રટણ છે, વ્યવહાર કદી આપ ચૂક્યા નથી, ધર્મ કદી આપ ભૂલ્યા નથી. એવા અશોકભાઈ પોતાની શુભકામના આપણી વચ્ચે રાખશે. ઓમ શાંતિ. બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા મહેસાણાના સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવના આજના સમાપન પ્રસંગે આપણને સૌને આશીર્વાદ આપવા માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત આદરણીય જયંતિ દીદી, આપણે રોજબરોજ એમને મળવાનું થતું હોય છે અને એમના આશીર્વાદ આપણને સતત મળતા રહે છે. એવા મહેસાણા સેન્ટરના મુખ્ય સંચાલિકા આદરણીય સલાહ દીદી, ઊંઝા એપીએમસીના ચેરમેન ભાઈ દિનેશભાઈ, જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ભાઈ કે પટેલ, જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકના વાઇસ ચેરમેન ભાઈ કેશુભાઈ, ઉપસ્થિત સૌ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાના ભાઈઓ બહેનો અને આપ સૌ યુવાન દોસ્તો, છેલ્લા 14 દિવસથી બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા દ્વારા વિવિધ પ્રદર્શનો અને જે કાર્યક્રમો થયા છે એના માધ્યમથી યુવાનો માટે, બહેનો માટે, બાળકો માટે અને ખાસ કરીને ખેડૂતો માટે જે હમણાં જ પ્રફુલભાઈએ વાત કરી પ્રાકૃતિક ખેતીની, એ ખૂબ જરૂરી વિષય આજના સમયની અંદર આપણી વચ્ચે મુકાયો છે. કારણ કે જે રીતે રાસાયણિક ખાતરના ઉપયોગથી ધરતી માતાને આપણે કુપોષિત કરી છે, આ ધરતી માતાને આપણે સુપોષિત કરવી હશે તો પ્રાકૃતિક ખેતી અને ગાય આધારિત ખેતી કરીશું તો જ સાચા અર્થમાં આપણે ધરતીને બચાવી શકીશું. પ્રફુલભાઈએ ખૂબ સરસ વાત કરી કે આપણે વર્ષોથી સાંભળીએ છીએ કે ગાય માતામાં 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ છે, એવું આપણો શાસ્ત્રો પુરાણો કહે છે. પણ સાચા અર્થમાં એને આ ધરતી પર ઉતારવાનું કામ જો કરીએ તો ગાય માતા, દરેક પરિવાર આજે ગાય રાખે, કારણ કે શહેરમાં શક્ય નથી, પણ આજે પણ ગામડામાં ખેડૂત પશુપાલક હોય અને દેશી ગાય રાખે તો એના માધ્યમથી ખૂબ સરસ આ ગૌમૂત્ર અને ગોબરથી કામ થઈ શકે છે. એ આપણને સૌને અહીંયા પણ રાજ્યપાલ શ્રી આવ્યા હતા. હમણાં 6 મહિના પહેલાં દૂધસાગર ડેરીમાં પણ અમે આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. આપણે બધા સદભાગી છીએ કે આપણને ગુજરાતના ગવર્નર જે મળ્યા છે આચાર્ય દેવવ્રતજી, એ ખરેખર જિલ્લે જિલ્લે ફરી અને આ પ્રકારના ખેડૂત સંમેલનો કરી અને સમાજની અંદર જાગૃતિ કરવાનું કામ કરી રહ્યા છે. મોટાભાગે ગવર્નર હોય એટલે એમને સામાન્ય લોકોને મળવાનું ઓછું થતું હોય ને આવું બહાર નીકળે પણ નહીં, પણ એ બધાથી પર થઈ અને એમને જે આખું અભિયાન ઉપાડ્યું છે એ મને લાગે છે ગુજરાત માટે ખૂબ સરસ વાત છે. અમે પણ દૂધસાગર ડેરીમાં બોલાવ્યા હતા અને લગભગ 1000 ખેડૂતો સાથે એમને સંવાદ કર્યો હતો અને એમને પણ સંતોષ થયો હતો કે આપણા જિલ્લામાં પણ ધીરે ધીરે આ કામ શરૂ થઈ રહ્યું છે. તો આજના સમયની અંદર મેં કહ્યું પ્રમાણે ધરતી માતાને સુપોષિત કરવી હશે, આપણે સારું ફળ અનાજ ખાવા હશે તો આ પ્રાકૃતિક ખેતી એ જ એક ઉકેલ છે. તો એ દિશામાં બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાએ પણ જે આ સેમિનાર કરીને કામ કર્યું છે એના માટે પણ એમને અભિનંદન આપું છું. આજના વ્યસ્ત સમયની અંદર આજે જે પ્રમાણે સમાજ જીવનમાં જોઈએ છીએ કે અશાંતિ ખૂબ છે, લોકો ખૂબ સ્ટ્રેસમાં જીવતા હોય છે, ધમાલું જીવન થઈ ગયું છે, ત્યારે એવા સમયમાં આ બ્રહ્માકુમારી સંસ્થાઓ દ્વારા જીવ અને શિવનું મિલન થાય, માણસને શાંતિ મળે અને એ દિશામાં માણસ વિચારતો થાય અને જીવન જીવવાની પદ્ધતિ શીખે, એ માટેના ખૂબ સુંદર પ્રયત્નો સંસ્થા કરી રહી છે. એના માટે પણ હું અભિનંદન આપું છું અને હું શુભેચ્છાઓ આપું છું કે ભગવાન શિવ બાબાએ અમને આ કામ કરવાની હજુ પણ વધુ શક્તિ આપે અને બધી જ જગ્યાએ લોકોમાં આ વાત ફેલાય અને બધા જ લોકો શાંતિથી જીવે અને પરમાર્થનું કામ કરે, એ દિશામાં પણ આપણે સૌ આગળ વધીએ. આજના પ્રસંગે આપ સૌને શુભકામનાઓ પાઠવી વિરમું છું. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અશોકભાઈનું. આપની શુભકામના, શુભ પ્રેરણાઓ સદાય અમારી સાથે છે. હવે હું આમંત્રિત કરું છું કે પટેલ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અર્બન બેંક મહેસાણા.
आप पण आपनी शुभकामना हमारी वच्चे राखशो। आदमी साधनों से नहीं साधना से महान बनता है, आदमी भवनों से नहीं भावना से बड़ा बनता है, आदमी उच्चारण से नहीं आचरण से श्रेष्ठ बनता है। एवा श्रेष्ठ आचरणना धनी અથક પુરુષાર્થી એવા કે પટેલ પોતાની શુભકામના આપણી વચ્ચે રાખશે। ઓમ શાંતિ। આજે આ પવિત્ર ભૂમિ પર બ્રહ્માકુમારી મહેસાણા સબ ઝોનના સુવર્ણ જયંતિ પ્રસંગે આધ્યાત્મિક મેળો શિવ 3થી સ્વર્ણિમ ભારતનું જે આયોજન થયું છે એના સમાપન પ્રસંગે પધારેલા બ્રહ્માકુમારી આદરણીય રાજયોગીની જયંતિ દીદી, સરલા દીદી, રેણુકા દીદી, તૃપ્તિ દીદી, પ્રફુલ્લભાઈ, ડાયસ પરના સર્વે મહાનુભાવો, બ્રહ્માકુમારી બહેનો, આપ સર્વે સજ્જનો, યુવાન દોસ્તો અને મિત્રો, આજે 14 દિવસનું બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા દ્વારા જે આયોજન થયું એ ખરેખર અદ્ભુત આયોજન હતું। સવારથી સાંજ સુધી એટલું શાંતિમય વાતાવરણની અંદર આ સુંદર મેળાનું આયોજન થયું અને એ આયોજનના ભાગરૂપે જે તમામ વર્ગો કહી શકાય એવા ખેડૂતો હોય, શિક્ષકો હોય, કર્મચારીઓ હોય, યુવાનો હોય, ડૉક્ટરો હોય, દરેક વર્ગના ને સ્પેશિયલ દિવસ ફાળવી અને અહીં બોલાવી અને સત્સંગ અને પ્રદર્શન દ્વારા જે જ્ઞાન પૂરસવામાં આવ્યું એ ખરેખર એક આપણે અદ્ભુત કામ થયેલું છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે બ્રહ્માકુમારી સંસ્થા માનવ જાત માટે અત્યારે આપ સૌ જાણીએ છીએ કે સુખ અત્યારે દરેક માણસ અજંપો, તણાવ, અશાંતિમય જીવન આપણે જીવી રહ્યા ત્યારે એની અંદર સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને માનવ શાંતિથી પ્રેમથી રહેતો થાય એવા સંસ્થા પ્રયત્ન રહી છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આત્મા એ પરમાત્મા છે, આત્મા આપણામાં પણ ચૈતન્ય શક્તિ છે અને આત્માથી જ પરમાત્માનું મિલન થાય એ માટેનું આ સંસ્થા દરેક સેમિનારની અંદર દરેક જગ્યાએ કેટલાય વર્ષોથી કામ કરી રહી છે અને આ આપણા ભારતને સ્વર્ણિમ ભારત બનાવવાનો એક ધ્યેય સાથે દરેક માનવ પ્રેમ અને શાંતિથી રહે અને એક સ્વર્ગનું વાતાવરણ ભારતમાં ઊભું થાય એ માટે આ સંસ્થા વર્ષોથી કામ કરી રહી છે। સરલા દીદીની વાત કરીએ તો આપણે સૌ સરલા દીદીને જાણીએ છીએ કે વર્ષોથી આ સંસ્થાની અંદર ગામે ગામ ફરી દરેક પ્રોગ્રામોની અંદર એમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન આ માનવ જાતના કલ્યાણ માટે એમણે અર્પણ કર્યું છે। ભગવાન શિવ બાબાને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આ બહેનો દ્વારા જે આ સંસ્થા ચાલી રહી છે અને માનવ કલ્યાણનું કામ થઈ રહ્યું છે એ માટે શિવ બાબા એમને ખૂબ જ શક્તિ આપે અને આપણે પણ જ્ઞાન અને પ્રકાશ દ્વારા આપણે પણ દિવસમાં થોડો સમય કાઢી અને એકાગ્ર થઈ અને આપણે પણ આપણા આત્માનું મિલન પરમાત્મા સાથે થાય એવા આપણે પણ થોડો સમય કાઢીને પ્રયત્ન કરીએ। આપણે જે કરી રહ્યા છે એ આપણા જીવનનું એ ધ્યેય નથી, આપણે દોડાદોડી કરી રહ્યા છે પણ અંતે તો એનું કોઈ પરિણામ નથી। પણ આ જે આધ્યાત્મિકતા આપણા જીવનમાં આવે અને કંઈ આધ્યાત્મિક રસ્તે આગળ વધી અને આપણે આપણા આત્માનું કલ્યાણ થાય અને આત્મા સાથે પરમાત્માનું મિલન થાય એવા આપણે સર્વે પ્રયત્ન કરીએ। ફરીથી આ સંસ્થાએ જે સુંદર આયોજન કરી અને માનવ જાતના કલ્યાણનું કામ કરી રહ્યા એ માટે ફરીથી આપણે સૌ ધન્યવાદ આપી અને સરલા દીદીના આ કાર્યને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે સૌ એમને વધાવીએ। મને આ પ્રોગ્રામની અંદર બોલાવીને આવા સુંદર વાતાવરણની અંદર પવિત્ર કાર્યક્રમમાં સહભાગી થવાનું સરલા દીદીએ જે મને મોકો આપ્યો એ બદલ સંસ્થાનો હું ખૂબ જ ઋણી છું। અસ્તુ। खूब खूब धन्यवाद आपनो। भाइयों और बहनों, अब हम शांति से अपने आसन में बैठ करके एक ऐसे विरल विभूति से हम मिलने जा रहे हैं। अब वो मंगल घड़ी है आज के समारोह की शान, ब्रह्मा कुमारीज के दिलो जान हमारी प्यारी जयंती दीदी जी, वैश्विक आध्यात्म की शीर्षस्थ आध्यात्मिक हस्तियों में से एक। दीदी जी, आपका नाम देश और दुनिया में सूर्य की तरह रोशन है। इसका कारण साक्षात परमात्मा शिव की अनुकंपा आपके ऊपर है।
आपने बाल्यकाल में ही आध्यात्मिक उत्कंठा जीवन में समाहित कर ली थी। आपके नाम के अनुरूप विलक्षण बौद्धिक प्रतिभा के धनी हैं। आपकी सादगी, सरलता, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता सब आत्माओं को आत्म उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। आदरणीय दीदी जी का जीवन लाखों आत्माओं के लिए आध्यात्मिक शक्तियों का प्रचंड स्रोत बना हुआ है। इस युग में जिसे भी देखो वो गुरूर लेकर के चलता है। कोई कोई उस प्रभु का प्यारा है जो उनका नूर लेकर के चलता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी महान विभूति, ऐसी महान देवी हैं जिनके संकल्पों में, वाणी में, कर्मों में उसी का ही नूर है। पर उन्हें देखो तो याद आता है वो सच्चा हुजूर है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडिशनल चीफ और यूरोपियन डायरेक्टर आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी, जिन्हों के नाम में ही जय समाई हुई है। कौन आया है आज हमारे बीच? रूप नुरानी है, परियों की रानी है, कोई प्यारी सी कहानी है। फूलों सी मुस्कान है, अनंत अथाह गुणवान है, देवी के समान है। ईश्वर का नजराना है, ज्ञान का खजाना है, आज महसाना में हुआ आना है। सबसे प्यारी हैं, कमल सी न्यारी हैं, ऐसी अद्भुत जयंती दीदी जी हमारी हैं, ऐसी अद्भुत जयंती दीदी जी हमारी हैं। एक बार करतल ध्वनि से हम आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं और महसाना की ओर से दीदी जी का सम्मान करते हैं। ऐसी प्यारी हमारी दीदी जी से बड़े भावों से अभिलाषा करते हैं, निवेदन करते हैं, आप अपने शुभ आशीष हमारे बीच में रखेंगे। आदरणीय जयंती दीदी जी। ओम शांति। महसाना के ब्रह्मा कुमारी संस्था को बहुत बहुत शुभ मुबारक देते हैं कि 50 वर्ष की सेवाएं आज वो देख रहे हैं। आप सोचो, एक व्यक्ति भी अपना जीवन परमात्मा के प्यार में समर्पित करके देश की सेवा अथवा विश्व की सेवा करता, तो हम सोचते हैं कि उसकी एक ही जीवन कितनी न महान है। और मैं आज थोड़ा सा सरला दीदी से सुन रही थी कि यहाँ की सेवाएं कितनी विस्तार को प्राप्त की है। मैं सरला दीदी को 50 वर्ष से जानती हूँ, क्योंकि जब वो दिल्ली में रहते थे तो उस समय भी हमारी मुलाकात होती रहती थी। और फिर मैं महसाना में भी देखती थी कि किस तरह से छोटे से स्थान को बड़ा और आज तो बहुत सुंदर शानदार मेला देख रहे हैं। परंतु न केवल सरला दीदी ने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया है, परंतु 22,000 नियमित स्टूडेंट्स इस क्षेत्र के अंदर हर रोज़ राजयोग का अभ्यास करते। तो ये तो चलो 22,000 की संख्या तो भारत के संख्या के हिसाब से तो छोटी सी ही कहेंगे, परंतु मुझे मालूम है कि 22,000 स्टूडेंट्स कहेंगे, परंतु उनके परिवार, उनके पड़ोसी, उनके संबंध वाले, उनके स्थान के नज़दीक वाले जहाँ पर वो काम करते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस योगी जीवन का प्रभाव कहाँ दूर दूर तक फैल चुका है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और उसमें भी मुझे मालूम है कि न केवल शहरों में सेवाएं की है, परंतु साथ ही साथ बहुत समय से जो रूरल एरियाज़ है, जो अपने गांव है, वहाँ पर भी न धूप देखी, न दिन देखा, न कुछ और सोचा, परंतु हमारी दीदी और उनके साथ साथ उनकी जो शिव शक्ति सेना है, जितने टीचर्स समर्पित बहनें हैं, परंतु और भी प्रवृत्ति में रहने वाले अपने भाई बहन हैं, उन्होंने भी किस तरह से सेवाएं करके बहुत ही जीवन के अंदर
अनेक आत्माओं की ज्योत जगाई है। और ये भी कहेंगे कि आज आप एक स्थान की कहानी सुन रहे हैं, परंतु सारे भारत के अंदर करीब 40,000 हमारे समर्पित बहनें हैं जो इस तरह की सेवा सारे भारत की कर रहे हैं। और ये भी जान कर के आपको अति हर्ष होगा कि भारत से भी जो ज्ञान योग परमपिता परमात्मा यहाँ अवतरित होकर के हमें सिखा रहे हैं वो देश विदेश के कोने कोने में पहुँच चुका है। आपको मालूम होगा कि इंटरनेशनल योगा डे करीब 8 वर्ष पहले अपने प्राइम मिनिस्टर ने वो कैंपेन शुरू किया था और फिर वो तुरंत ही 1 वर्ष के अंदर वो इंटरनेशनल योगा डे जून 21 के लिए वो सब तरफ विश्व भर में फैल चुका है। तो भारत से भी जो ज्योत निकली है वो सारे विश्व में अब प्रकाश दे रही है। और वो ज्योत है अपनी राजयोग की शिक्षाएं, और जिस द्वारा हमें ये शिक्षा प्राप्त होती, हम कहेंगे कि हाँ, परमपिता परमात्मा शिव ने 87 ईयर्स पहले अवतरित होकर के ये कार्य आरंभ किया। एक छोटी सी कहानी मैं सुनानी चाहती हूँ। एक व्यक्ति था जो बड़े आराम से अपनी जीवन में बहुत ही सुंदर ढंग से ज्वेलर का काम करते थे। परिवार में, समाज में सब तरफ से उनको मान शान प्राप्त था। और फिर करीब करीब जैसे ही वो 60 वर्ष की आयु तक पहुँचे तो उनको अनेक प्रकार के साक्षात्कार होने लगे। और वैसे भी उसके जीवन में बेशक धन दौलत और सुख शांति, परिवार का बहुत ही मान सब प्राप्त था, परंतु वो साथ ही साथ गीता को नियमित पढ़ते थे। हर रोज़ हर प्रकार से अपनी प्रार्थना साधना सवेरे से लेकर 11 बजे तक सुबह को करते थे और फिर अपना दिन का दिनचर्या और परिवार सहित बिताते थे। परंतु जिस समय ये साक्षात्कार होने लगे वो थी उनके जीवन के परिवर्तन की घड़ी। उसका नाम था दादा लेखराज। और जैसे ही उसको पहले साक्षात्कार हुआ कि परमात्मा का स्वरूप है ज्योति स्वरूप, वैसे तो वो विष्णु भगवान को ही मानते थे, अब उनको निराकार शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। और फिर साथ साथ उनको विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ और उन्होंने ये शब्द सुने कानों द्वारा, तत्वम अस्मि, तुम ही ऐसे बनने वाले हो। तो उसको समझ में नहीं आया। और फिर तीसरा जो उसको साक्षात्कार हुआ वो ये था कि आज का जो समय है यह है 1936 की बातें, परंतु जिसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है जिसमें बहुत ही साइंस की भी महानता है, परंतु साथ साथ हम कहेंगे माया की भी बहुत ही प्रभावशाली रूप चल रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये जो मॉडर्न संसार है बहुत ही उथल पाथल में आ रहा है, अनेक प्रकार के प्रकृति की आपदाएं आ रही है। तो ये सारा उथल पाथल होने के बाद उन्होंने देखा कि किस तरह से आत्माएं ऊपर जा रही है, ऊंचा ऊंचा उड़कर अपने परम धाम में। और उस बीच में संसार की उथल पाथल होते फिर वो एक शांति छाई जाती है। पृथ्वी एक नवीनता का रूप धारण करती है। फिर से वो जैसे कि प्योर फर्टाइल ग्रीन प्लैनेट बन जाता है। और उस धरती पर ऊपर से जैसे आकाश से तारे आते हैं, वो तारे एक मानव का रूप धारण करते हैं। और जब इस धरती पर वो मानव का रूप देखते, परंतु मानव को आज के समान मानव नहीं, परंतु एक जैसे कि उनके द्वारा एक रोशनी नज़र आ रही थी। ये हड्डी मांस नहीं नज़र आ रहा था,
मानव होते भी एक रोशनी उनके द्वारा प्रकट हो रही थी और उनके नैनों द्वारा ऐसे लगता था एक प्रकाश फैल रहा है। और जब वो कुछ बोलते थे एक जैसे कविता के रूप में वो नज़र आती थी बात। और जब वो चलते थे लगता था कि ये कोई नृत्य कर रहे हैं, न कि सिर्फ चल रहे हैं। और जब वो पेड़ पौधों को देख रहा था तो देखा कि बहुत ही सुंदर प्रकृति की रूपरेखा इतनी सुंदर थी जो आज हम कल्पना नहीं कर सकते। और जो मानव और जानवर के पशु पंछी के साथ संबंध था एक बहुत प्रेम मित्रता का संबंध था। तो ये सब देख करके वो सोच रहे थे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। एक जैसे कि मैं स्वर्ग की दुनिया, एक स्वर्णिम भारत में देख रहा हूँ। और फिर उन्हें ये आवाज़ आया कि तुम्हें ऐसा संसार बनाना है। वो बड़ी गहरे सोच में पड़ गया और ये सोचने लगा कि ऊपर वाले ने ये मुझे संदेश दिया है कि ऐसे संसार तुम्हें बनाना है, परंतु ये नहीं बताया कि कैसे बनाना है। तो वो इस गहरे सोच में बहुत समय तक कुछ टाइम लग गया, परंतु फिर उसको ये ध्यान पर आया कि यदि कोई भी बात का परिवर्तन होता, वो जब ज्ञान होता अथवा एजुकेशन होती, कुछ समझ आती, तो उस आधार पर जीवन परिवर्तन हो सकता। तो विश्व में आज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के नॉलेज है, परंतु स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज, आध्यात्मिकता की नॉलेज वो कुछ गायब हो चुकी है। धर्म होते भी हम ये कहेंगे कि आध्यात्मिकता की शक्ति आज नज़र नहीं आती। तो उन्होंने ये अपने ऊपर जिम्मेवारी उठाई कि स्पिरिचुअल एजुकेशन का कार्य मुझे आरंभ करना है। और कोई भी बात एक छोटे से रूप में आरंभ होती तो उस समय एक छोटा सा संगठन था और उन माताओं बहनों को, कुछ भाई भी थे परंतु अधिक माताएं बहनें ही थी, तो उन्होंने बैठ कर के राजयोग की शिक्षाएं दी। राजयोग का भावना, योग एक के साथ संबंध जोड़ना, और राजयोग जो परम पिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा बाप है, या ये भी कहें माता पिता, सखा, स्वामी, शिक्षक, सब वही एक है। तो उनके साथ संबंध जोड़ना, उसी को ही हम कहेंगे राजयोग। ऐसा योग जिससे हम खुद आत्मा अपने इस शरीर का राजा बन सके। आज हर एक कहेगा कि कभी हमारी आंखें मुझे धोखा देती, कभी जीभ धोखा देता, कभी कान धोखा देते, परंतु जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, हर कर्म इंद्रिय हमारे कंट्रोल में रहती, उसका हम मालिक अथवा राजा बनते। और साथ ही साथ जो आंतरिक इंद्रियां है अथवा ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, उनके ऊपर भी हम अपना मालिक अथवा राजा बन सकते। आप सोचो, आज के जीवन में मन आपको चला रहा है या आप आत्मा मन को चला रही है। कई बार हम कहेंगे मेरा मन भटक रहा है, कभी हम कहेंगे कि मन में शांति हमें नहीं प्राप्त हो रही, कभी हम कहेंगे पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया, उस समय तो मुझे ये नहीं करना चाहिए था परंतु ये बात मेरे से हो गई, पता नहीं मेरी बुद्धि को उस घड़ी किस बात का प्रभाव था। या अपने संस्कारों में भी हम देखते हैं कि कभी बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संस्कार उत्पन्न होते, कभी हम देखते हैं कि कुछ अलग प्रकार के संस्कार नजर आते, परंतु आत्मा के अंदर जो निज संस्कार है, आदि संस्कार, शांति, प्रेम,
सत्यता, पवित्रता और आनंद के संस्कार राजयोग द्वारा हम ये सीखते हैं और अभ्यास करते हैं कि वो जो सत्तो प्रधान संस्कार हर आत्मा के अंदर है, उनों की प्रगति किस तरह से हो और वो हमारे जीवन में आज हम उसका अनुभव कर सकें। जो छोटा सा संगठन था, दादा लेखराज का नाम चेंज होकर के उन्हों को ब्रह्मा बाबा नाम दिया गया परमात्मा के आज्ञा अनुसार। तो ब्रह्मा बाबा ने ऐसे सेना तैयार की जिसमें उन्हों को ये भी दर्शन में समझ में आया कि यदि हम इक्वालिटी का संसार चाहते हैं तो इक्वालिटी में पहले बात जो इन इक्वालिटी की है, अथवा माताओं को कलयुग के अंत के समय कोई दर्जा नहीं दिया जाता है, उन्हों को ही आगे रख करके उन्हों के द्वारा ही परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि शिव शक्तियों ने ही नरक को स्वर्ग बनाया। शिव शक्तियों ने ही बिल्कुल विकारों के जो बुराइयां हैं उन्हों को दूर करके एक श्रेष्ठ जीवन अनेक आत्माओं को दी। वो कार्य परमात्मा ने 87 ईयर्स अगो शुरू किया, जो आज भी चल रहा है। परंतु आज के संसार की हालत को देख करके हम ये भी देख रहे हैं कि कलयुग की बिल्कुल अंतिम घड़ियाँ चल रही है और उसके बाद क्या होगा। भारत में तो हम ये मानते हैं कि सृष्टि चक्कर अनादि अविनाशी घूमता रहता। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापुर गया, अब कलयुग चल रहा। परंतु कलयुग में भी कौन सी घड़ी चल रही? बिल्कुल अंतिम घड़ियाँ। आप संसार का समाचार मेरे से अधिक जानते होंगे, तो आप लोगों को पता चलता होगा कि क्या क्या हो रहा। एक तरफ हम कहेंगे तमो प्रधानता की अति सीमा चल रही, परंतु दूसरी तरफ हम देखेंगे कि योग की जो प्रकाष्ठा है वो विश्व में फैल रही। कई बातें जो मैं समझती, सेंटर लंदन का फर्स्ट सेंटर था, विदेश में स्थापन हुआ, वो था 1971। तो इस 50 वर्ष के अंदर मैंने देखा है कि किस प्रकार से पहले जो योग नहीं कोई मानते थे, जानते थे, अभी हर एक ने योग का शब्द तो सुना है। सब अभ्यास नहीं करते, परंतु जानते तो है कि हाँ ऐसी भी कोई शक्ति है। और साथ साथ वैष्णव भोजन, जो पहले मैं जब स्कूल में जाती थी उनको मालूम ही नहीं होता था कि मुझे वैष्णव भोजन देने का मतलब क्या। वो समझते थे थोड़ा सैलड दिया, थोड़ा आलू दिया, बस उनको और जानकारी नहीं थी वैष्णव भोजन की। परंतु आज भारत में तो अनेक और बातें अभी प्रचलित है, परंतु विदेश में वेजिटेरियन भोजन का बहुत बहुत प्रचार हो चुका है। कई लोग अभी वही मानते हैं कि तबीयत के लिए भी ठीक है और बिल्कुल तन मन दोनों के लिए फ़ायदा है। और जो हमारा प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, अभी विदेश में उसका बहुत बहुत मान शान चल रहा है कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही न केवल हमारी तबीयत की इलाज होता है, उसकी तबीयत ठीक होती, परंतु साथ ही साथ यदि हम भविष्य में चाहते हैं कि धरती माँ भी हमारे साथ रहे, हमें पालना देती रहे, तो हमें उसी तरफ ही जाना होगा। तो ये तो बहुत डिटेल की बातें हैं, चाहे योग की बात, चाहे विश्व परिवर्तन की बातें। परंतु मैं तो पहले थैंक्स देंगी कि सरला दीदी और उनके सारे टीचर्स की सेना और भाई बहनों जो इतनी मेहनत करके इतना सुंदर मेला तैयार किया है, जिसमें इतने प्रोग्राम्स चले हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहती हूँ। आप सोचो आपके पास एक दिन शादी होती है, कितनी मेहनत करनी होती। और यहाँ 14 दिन मेला चला है, उसमें संडे के दिन
25,000 लोग आते रहे, अन्य और दिन करीब 10,000 15,000 लोग आते रहे, साथ साथ प्रोग्राम चलता रहे, तो उसमें परमात्मा के प्यार के बगैर ये सब कार्य नहीं हो सकता था। परंतु जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु प्रेम का अनुभव किया है, उन्हों के मन में यही भावना होती है कि अब सब जो भी हमारे भाई बहन है, विश्व हमारे भाई बहन है, उन सब को यही अनुभव हो, ताकि प्रभु प्रेम के द्वारा उन्हों के जीवन में भी बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन हो सके। धन्यवाद के साथ साथ मैं कंग्रेचुलेशंस देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। आपने तो हमारा दामन भर दिया। कुर्बान है आपकी बख्शिश पर, मकसद भी जुबा पे लाए नहीं। बिन मांगे इतना दिया कि दामन में मेरे समाया नहीं, दामन में मेरे समाया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। भाइयों ने बहनों, આ મેળાના શુભારંભમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભ્રાતા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આપણે આમંત્રિત કર્યા હતા, પરંતુ આપ હાજર રહી શક્યા નહોતા। આપે આજે આપની શુભ પ્રેરણા, શુભકામનાઓ આપણી વચ્ચે રાખી છે, પાઠવી છે, જેને આપણે સાંભળીશું। આદરણીય બી.કે. સરલાબેન અને પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય મહેસાણા ઉપક્ષેત્રની સમર્પિત બહેનો, ઓમ શાંતિ। શિવ અવતરણથી સ્વર્ણિમ ભારત જેવા સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક સૂત્ર સાથે તારીખ 13 થી 26 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન મહેસાણા ઉપક્ષેત્રમાં કરાયેલ ભવ્ય મેળા અને પ્રદર્શનીના લાઇટ શોના આયોજનમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું આપનું ઈશ્વરીય નિમંત્રણ પ્રાપ્ત થતાં ખૂબ જ આનંદ થયો। સંસ્થાની આધ્યાત્મિકતા અને રાજયોગ સંવર્ધના હેઠળ ચાલતા આયોજનો સમાજના વિભિન્ન વર્ગ, યુવા, મહિલા અને વ્યવસાયિકોની આસ્થાને આકર્ષી રહ્યા હતા। આપના માર્ગદર્શનમાં આયોજિત આ મેળામાં સ્વર્ણિમ ભારત નિર્માણ માટેની અખંડ પ્રેરણા સર્વને પ્રાપ્ત થાય તેવી શુભકામના સાથે નિમંત્રણ માટે ખૂબ ખૂબ વંદન। આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર, શુક્રિયા, થેન્ક્સ। હવે આ કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હું આપ સર્વને મળવા જઈ રહી છું। આ ગોલ્ડન જુબલીના બીજ રૂપ, જેમની ત્યાગ, તપસ્યા અને સેવાઓથી આ ઉત્તર ગુજરાતની ફૂલવાડી મહેકી રહી છે, જેમની રૂહાની દૃષ્ટિમાં ફક્ત પરમાત્માનો પ્રેમ છલકાઈ રહ્યો છે, એવા સરળ હૃદયા સરલા દીદીજી, આધ્યાત્મિક ક્રાંતિના સ્તંભ સવાન, પ્રકૃતિના સંરક્ષણ, પ્રકૃતિપતિ પરમાત્માના દિલ તખ્ત નશીન, જેમના હૈયે સર્વ આત્માઓનું હિત સમાયેલું છે, દેશ અને વિદેશના કિસાનોના આર્થિક, સામાજિક, શારીરિક અને સર્વ સ્વાસ્થ્યને સુધારી આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે અનેક મહાસંમેલનો, સેમિનાર અને અભિયાનોનું આયોજન કરી એક સ્વર્ણિમ ભારતની રચના માટે છેલ્લા 50 વર્ષથી ધૂપસળીની જેમ ખુદ ખપી જઈ એક એક શ્વાસ, સમય અને સંકલ્પને સફળ કરી રહ્યા છું। જન જન સુધી પરમાત્મા પ્રત્યક્ષતાની મશાલ પ્રજ્વલિત કરી કિસાનોની દશા અને દિશાને બદલવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છો, એવા સંકલ્પથી સિદ્ધિ અને સંકલ્પથી સૃષ્ટિને જીવનનો મંત્ર બનાવી સફળતાના શિખરને સર કરનાર એવા ગ્રામ વિકાસ પ્રભાગના અધ્યક્ષ, મહેસાણા સબઝોન સંચાલિકા આદરણીય સરલા દીદીજીને હું નમ્ર નિવેદન કરીશ, આજના કાર્યક્રમની શુભ પ્રેરણા, દિલના ઉદ્ગારો આપણી વચ્ચે રાખશે। હું ફક્ત આપના માટે એટલું જ કહીશ, हार जिनके हौसले को हरा नहीं सकती, मार्ग की मुश्किलें जिनके मन को मुंझा नहीं सकती, नज़र जिनकी रहती सदा अपने लक्ष्य पर, निश्चय हैं जिन्हें भरपूर अपनी शक्तियों पर, छू लिया है जिसने सफलता के शिखर को। ऐसी आदरणीय दीदी जी को इस गोल्डन जुबली की कोटि कोटि बधाई हो, बधाई हो आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पवित्र परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान प्रिय आत्मन, शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत आध्यात्मिक मेले के समापन मंच पर उपस्थित हमारे यज्ञ की वो विरल विभूति जिसका चुंबकीय व्यक्तित्व है और जिसको उस चैतन्य डायमंड को खुद खुदा ने संवारा है। आप सोचिए, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसको प्राप्त है, ऐसी परम श्रद्धे आदरणीय जयंती दीदी, मैं क्षमा चाहूँगी उनसे क्योंकि आज आपका दिन अति 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 व्यस्त था। आपकी सारी अपॉइंटमेंट फिक्स थी, मीटिंग सब अरेंज की हुई थी, लेकिन हमने आप सब की तरफ से एक विनम्र अनुरोध हंसा बहन जी को किया कि हमारे सर्व उत्तर गुजरात के भाई बहनें और टीचर्स बहनों की ये एक अनुरोध है कि समापन सत्र में जयंती दीदी पहुँचे। आपने, हंसा बहन ने जयंती दीदी के साथ मिलकर के सभी टाइमिंग्स को चेंज किया और सेट किया और आप हमारे मध्य पहुंची। तो मैं खूब 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 दिल से हंसा बहन जी और आदरणीय जयंती दीदी का अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं कि आज मेले का समापन सत्र है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि महसाना शहर के अंदर ये आध्यात्मिक मेला ये कॉमन मेलों के समान मेला नहीं है। इस मेले का जो ध्येय है, हजारों भाई बहनें जिन्होंने अपना तन मन धन समय और शक्ति लगाई है, एक एक श्वास सफल किया है, तो ध्येय ये है कि समग्र महसाना और उत्तर गुजरात की जनता उन्हें उस प्रभु पिता का दिव्य संदेश प्राप्त हो। न केवल संदेश प्राप्त हो, परंतु प्रभु पिता से अपना जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करें। इस श्रेष्ठ संकल्प से यहाँ मेले का आयोजन हुआ। सुबह से लेकर रात तक सभी सेवाधारियों ने बहुत सुंदर सेवाएं दी। तो पहला संकल्प था कि समग्र उत्तर गुजरात के अंदर में आध्यात्म का डंका बजे। तो सभी भाई बहनों को विभिन्न साधनों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, संदेश के द्वारा ये आध्यात्म ज्ञान प्राप्त हुआ है। दूसरी सूक्ष्म एक बात ये है कि इस मेले के अंदर हजारों भाई बहन जो पवित्र और योगी हैं, जो खेत में खेती करने वाले किसान हैं, जो सच्चे संत हैं, ऐसी पवित्र आत्माओं का आगमन विभिन्न विंग्स के कार्यक्रमों में हुआ। उनके उन पवित्र प्रकंपनों ने न केवल महसाना परंतु आजू बाजू के क्षेत्र को, इस वायुमंडल को परिवर्तित किया है, क्योंकि पवित्र प्रकंपनों में एक महान शक्ति है जो शायद आज आप लोग को महसूस न भी होती हो, लेकिन वातावरण के अंदर में जो हम लोग 14 दिन से यहाँ बैठ कर के ये महसूस कर रहे हैं, हर एक के जीवन में आनंद, उल्लास और उमंग दिखाई दे रहा है। तो वातावरण परिवर्तन का कार्य इन पवित्र योगी आत्माओं के द्वारा हुआ है। सैकड़ों आत्माओं ने राजयोग शिविर कर अपने जीवन के अंदर परमात्मा मिलन की अनुभूति की है, जिससे सच्चे सुख और आनंद का अनुभव आगे भी वो करते रहेंगे। ऐसे इस मेले के द्वारा
विभिन्न सेवाएं हुई हैं। महसाणा सेवा केंद्र के 50 वर्ष का इतिहास बहुत लंबा है, मैं उसका वर्णन नहीं करती हूँ, परंतु श्रद्धेय जयंती दीदी ने यज्ञ का इतिहास, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का इतिहास बहुत संक्षिप्त रीति में 87 वर्षों में जो सेवाएं हुई हैं उसको हमारे समक्ष रखा। क्या एक साकार बाबा दादा लेखराज से लेकर के उन्होंने अपनी संपन्न और श्रेष्ठ स्थिति और हजारों लाखों भुजाओं को तैयार कर विश्व परिवर्तन का महान कार्य किया है, जो हमने आपके मुख से सुना। साथ ही साथ इस मेले के सफल आयोजन में महसाणा शहर के अग्रगण्य सबका इतना साथ, सहयोग और सत्कार मिला है। सभी ने जैसे अपने परिवार के अंदर किसी कार्यक्रम को रुचि लेकर के किया जाता है, ऐसा हमें विद्यालय को उनसे सहयोग प्राप्त हुआ है। तो मैं विद्यालय की तरफ से उन सभी महानुभावों का, कुछ मंच पर भी उपस्थित हैं, कुछ सभा में उपस्थित हैं और कुछ अनुपस्थित भी हैं, उन सब का आज के इस समापन सत्र में खूब 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 दिल से अभिनंदन भी करती हूँ और साथ साथ एक शुभ कामना ये व्यक्त करती हूँ कि ये सभी महानुभाव न केवल मेले से लेकिन वर्षों से विद्यालय की सेवा की ये प्रवृत्ति में सहयोगी रहे हैं। आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एडिशनल चीफ आदरणीय जयंती दीदी जी उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उनके समक्ष ये संकल्प करें कि हम भी सहयोगी से राजयोगी का टाइटल आज के दिन से स्वीकार करेंगे। प्रफुल्ल भाई के साथ में जैसा कि 95 से संबंध है, आपको बहुत रिस्पेक्ट है और प्राकृतिक खेती के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे दिनेश भाई पटेल ऊंचा APMC, आपका भी विद्यालय के साथ घनिष्ठ नाता है। आपके गांव में, आपके घर पर इस विद्यालय का पाठशाला चलती है। सभी अच्छे सहयोगी के पटेल, केशु भाई पटेल, केशु भाई से तो ऐसे लगता था कि जैसे उनके अपने घर में प्रसंग हो, सुबह शाम आना, हर रीति का सहयोग देना और बहुत रुचि से आपने सभी कार्यक्रम में हमें सहयोग दिया है। ठीक इसी प्रकार से DM पटेल, आप भी वर्षों से विद्यालय के संपर्क में रहे हैं और मैं ये बताना चाहूँगी कि एक वर्ष आप यहाँ के नियमित विद्यार्थी, गॉडली स्टूडेंट के रूप में आपने अभ्यास किया है। सुबह सुबह डेली 5 बजे आप सेवा केंद्र पर पहुँचते थे। राजयोग और बाबा की जो महावाक्य, जिसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं, उस मुरली का श्रवण भी किया है, लेकिन अति व्यस्तता के कारण आप उस दिनचर्या को नहीं नियमित बना सके। लेकिन बाबा के यज्ञ से और ईश्वरीय सेवाओं से प्यार है, तो DM पटेल, हमारे अनिल भाई, मंच पर भानु भाई, केतन माँ हमारे बीच में नहीं है, उसकी जगह भावनी बहन में उपस्थित है। तो सर्व महानुभावों का मैं आज इस समापन सत्र में खूब खूब दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। सभा में हमारे डॉक्टर PD पटेल, ये एक ऐसी विभूति है जिसका हम बहनों के साथ बहुत आत्मीयता भरा संबंध है। 1, 2, 3 नहीं, कितनी बहनों की मेडिकल ट्रीटमेंट आपने हमेशा फ्री की है और बहुत केयरफुल की है। मैं दिल से आपका अभिनंदन और साथ साथ शुक्रिया करती हूँ। जैसे PD पटेल हैं, ऐसे ही हमारी शीला बहन भी इतनी ही अथक और सेवा केंद्र की शुभेच्छु हैं। अन्य जो भी हमारे महानुभाव सभा में उपस्थित हैं, मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन आप सबका आज के इस समापन सत्र में दिल से शुक्रिया करती हूँ और साथ ही साथ ये एक विनम्र अनुरोध करती हूँ, जैसे दीदी ने कहा कि ये आध्यात्मिकता है, इस आध्यात्मिकता को अर्थात राजयोग को
आप जब अपने जीवन में अपनाएंगे तो सचमुच आपको ये महसूस होगा, चाहे आप बिजनेस पर हैं, चाहे आप जॉब पर हैं, लेकिन हर क्षेत्र में योग आपको बैलेंस रखने की कला सिखाएगा। योग से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, योग से आपके कर्मों में कुशलता आएगी। इसलिए इस राजयोग को आप साथ रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो समापन पर मैं अधिक समय ना लेते हुए, क्योंकि जयंती दीदी को अभी निकलना भी है, पुनः आप सबके लिए दिल की शुभ भावनाएं व्यक्त करती हूँ। जो परमात्मा पिता सृष्टि पर अवतरित हो चुका है, उससे आप अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेकर के अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाएं। ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं के साथ ओम शांति। ઓમ શાંતિ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આદરણીય દીદીજીનું. સર્વને સન્માનિત કર્યા. યોગ્યતા વ્યક્તિને સ્થાન આપે છે, શ્રદ્ધા વ્યક્તિને જ્ઞાન આપે છે અને સેવા વ્યક્તિને માન આપે છે. આ ત્રણેય જેના જીવનમાં આવે છે, ત્રણેયનો જ્યાં સમાગમ થાય છે ત્યાં વ્યક્તિને બધી જ જગ્યાએ સન્માન મળે છે. તો આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત એવા આદરણીય જયંતી દીદી, જેમનું સર્વપ્રથમ આપણે સન્માન કરીશું. આપ મહેસાણાની અંદર આ ફૂલવાડીની અંદર પધાર્યા છો, તો હું બહેનોને આમંત્રિત કરું છું, સર્વપ્રથમ આપણે જયંતી દીદીનું સન્માન કરીશું. ईश्वर ने बाल्यकाल से ही जिन्हें ढूंढ कर श्रृंगार किया है, जो श्रृंगार ईश्वर ने दीदी जी का किया, वही श्रृंगार वह सभी आत्माओं का कर रहे हैं. हम भी आज सब मिलकर के उसी श्रृंगार से दीदी को श्रृंगारित करेंगे, क्योंकि आज ये सुंदर श्रृंगार हंसाबेन पण मंच पर आवશે. दीदी जी के साथ आए हंसाबेन मंच पर आवશે. आज ये सुंदर श्रृंगार सम्मान हम सबको उत्सव की याद दिलाता है. ये सुंदर श्रृंगार आत्मा का श्रृंगार है, आत्मा की ओर प्रेरित करता है और हम सदा ही उमंग उत्साह में रहे, ऐसी हमें ये प्रेरणा देता है. दीदी जी का बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है. इसी के साथ साथ हमारे मंच पर जो सम्मानित मेहमान हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे. ये कैसा श्रृंगार है साई, सादगी श्रृंगार बन गई, आईना खुशहाल हो गया. आपके सम्मान पर मन से अनायास ही जागती हैं ये भावनाएं कि आज समय आपके साथ केवल उन्हीं पलों को लाए जो आपकी खुशी देख करके थम जाए. हर कली हर फूल बनते बनते यह कह जाए कि उनके हिस्से की खूबसूरत रंग मनमोहक खुशी भी आपकी हो जाए. आपके सपनों और आपकी खुशियाँ, आपके उमंग उत्साह की चमक इतनी तेज हो कि उनके आगे चांद सितारों की जगमगाहट भी फीकी पड़ जाए. बहुत बहुत है, दिल से आप सबका सम्मान है, शुक्रिया है. हम सब अपनी तालियों का सहयोग देते रहेंगे. आदरणीय जयंती दीदी जी माउंट आबू बेहद गर्व से ईश्वरीय सौगात आदरणीय दीदी जी को प्रदान कर रहे हैं. મંચ પર ઉપસ્થિત સર્વ મહેમાનોનું સન્માન કરશે આદરણીય દીદીજી.
જગદીશભાઈ પટેલ સિલિકોન બિલ્ડર્સ, નવીનભાઈ પટેલ રાકેશ કન્સ્ટ્રક્શન, ભાનુભાઈ પટેલ, નીરુભાઈ મિસ્ત્રી, નટુભાઈ પટેલ ઉમંગ પાર્ટી પ્લોટ, ડાયાભાઈ ડીએમ પટેલ, દશરથભાઈ પટેલ ગુજરાત મલ્ટીમેક્સ, ભાવિની બેન, સૌરભભાઈ મનહરભાઈ પટેલ હાઈકોર્ટ વકીલ, આદરણીય દીદીજીને મેમન્ટો આપીને સન્માનિત કરી રહ્યા છે દિનેશભાઈ. આદરણીય દીદીજી સર્વ મહેમાનોને સોગાત આપી રહ્યા છે. અશોકભાઈ ચૌધરી, જેમને આદરણીય જયંતિ દીદી સમયનું સૂચક ઘડિયાળ બતાવી રહ્યા છે, જે સદાયના માટે સમયને સફળ કરવાનું પ્રતીક છે. કેશુભાઈ પટેલ આદરણીય જયંતિ દીદી પાસેથી સોગાત લેશે. જગદીશભાઈ પટેલ સિલિકોન બિલ્ડર્સ, નવીનભાઈ પટેલ રાકેશ કન્સ્ટ્રક્શન, ભાનુભાઈ પટેલ, નટુભાઈ પટેલ ઉમંગ પાર્ટી પ્લોટ, ડાયાભાઈ પટેલ, આદરણીય દીદીજી આ માનવંતા મહેમાનોને સન્માનિત કરી રહ્યા છે. આપણે સર્વ આપણી તાળીઓનો સહયોગ જરૂર આપીશું. દશરથભાઈ પટેલ ગુજરાત મલ્ટીગેસ, આપ પણ મંચ પર આવો. સૌરભભાઈ મનહરભાઈ પટેલ, કિરીટભાઈ પટેલ મહેસાણા ડેરી, કાંતિભાઈ પટેલ બેંક ઓફ મહેસાણા, સુરેશભાઈ પટેલ
અનિલભાઈ પટેલ, કિરીટભાઈ ઉપસ્થિત નથી. કિરીટભાઈ વતી મનહરભાઈ ઈશ્વરીય સોગાત લેશે. પ્રકાશભાઈ પટેલ, સોમેશ્વર ગ્રુપ. પ્રકાશભાઈ પણ હાજર નથી. એમના વતી શૈલેષભાઈ આવશે. સૌમ્યતા, સભ્યતા અને સત્કારને પ્રણામ. ભીતરની ભવ્યતા અને સૌંદર્યને પ્રણામ. પરમાત્માના આવા રૂહાની પૈગંબરોને પ્રણામ. આપ સર્વએ ખૂબ સાથ અને સહયોગ આપી આ પરમાર્થ કાર્યને સંપૂર્ણતાના આરા સુધી પહોંચાડ્યું છે. આપણે દરેક એકવાર જોરદાર કરતલ ધ્વનિથી આ દરેક મહેમાનોનું સ્વાગત અને સન્માન કરી રહ્યા છીએ. અમારા આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ મહેમાનો, જેમણે પણ આ સભામાં ઉપસ્થિત રહીને હાજરી આપી છે, એમનું હું નામ એનાઉન્સ કરું છું. આપ પણ મંચ પર આવશો. સિલિકોન બિલ્ડર્સના ભાગીરથભાઈ, કૌશલભાઈ, પાવનભાઈ, કિરણભાઈ, નરેશભાઈ પટેલ, આપ પણ મંચ પર પધારશો. ડૉક્ટર પીડી પટેલ, આપ પણ મંચ પર પધારશો. સોમાભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ, જેમના પણ નામ એનાઉન્સ થઈ રહ્યા છે, આપ મંચ પર આવશો. આદરણીય જયંતિ દીદી પાસેથી સન્માનિત થઈ ઈશ્વરીય સોગાત અર્પણ કરશો. ડાયાભાઈ પટેલ, દિલીપભાઈ પટેલ, અરવિંદભાઈ પટેલ, રાજુભાઈ પટેલ, વિનયભાઈ, મહેશભાઈ પટેલ, ધર્મેશભાઈ પટેલ, ગિરીશભાઈ પટેલ, પ્રતાપભાઈ ચૌધરી, દીપકભાઈ પટેલ, કનુભાઈ પ્રજાપતિ, અંકિતભાઈ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, મેહુલભાઈ પટેલ, અલખભાઈ પટેલ, મહેશભાઈ પટેલ, કીર્તિભાઈ પટેલ, કોર્પોરેટર મહેસાણા, શુભમ ગજેન્દ્રભાઈ શાહ, પ્રવીણભાઈ ચૌધરી, ગુણવંતભાઈ પટેલ, ડૉક્ટર દિનેશભાઈ પટેલ અને મહેશભાઈ પ્રજાપતિ આંબલિયાસણ, આપ સર્વ મંચ પર પધારશો અને આદરણીય જયંતિ દીદી પાસેથી ઈશ્વરીય સોગાત અર્પણ કરશો. ये भगवान का घर जन्नत का द्वार है, इसमें रतन मिलते हजार हैं, यहाँ रूहानी प्यार बरमार है, आप यहाँ आना जरूर बार बार, यहाँ आना जरूर बार. આ સમાપન નથી, પણ આ નવા એક જીવનની શરૂઆતનો સમય છે. જે પણ આત્માઓએ પોતાનો સાથ, સહયોગ અને સત્કાર આપ્યો છે, આપ આપના જીવનની અંદર સદાયના માટે આત્મ ઉન્નતિ કરતા રહો. પરમાત્મા પિતાને સદાય સાથે રાખી જીવનની અંદર ખૂબ આગળ વધતા રહો, એવી અમારા અંતઃકરણની શુભ ભાવના અને શુભકામના છે. આજનો આ મંચ આપ સર્વને સન્માનિત કરી રહ્યો છે. સભામાં ઉપસ્થિત સર્વ ભાઈ બહેનોને નમ્ર નિવેદન છે, આપણે કાર્યક્રમના અંતિમ સમય સુધી પહોંચી ગયા છીએ. 5 મિનિટ માટે આપ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. ફક્ત 5 જ મિનિટ છે. આજનો આ કાર્યક્રમ ખૂબ સુંદર રીતે સફળતાપૂર્ણ થયો છે. એ બદલ હું આમંત્રિત કરું છું બ્રહ્માકુમાર અશોકભાઈને, જેઓ મંચાસીન મહેમાનનો આભાર કરવા માટે, થેન્ક્સ કરવા માટે પધારશે. બ્રહ્માકુમાર અશોકભાઈ.
શાંતિ. પ્રજાપિતા બ્રહ્માકુમારી ઈશ્વરીય વિશ્વવિદ્યાલય મહેસાણા સબ ઝોનના સવર્ણ જયંતિ મહોત્સવ નિમિત્તે આયોજિત આધ્યાત્મિક મેળો શિવ અવતરણથી સ્વર્ણિમ ભારતને સફળ બનાવનાર અને પ્રેરણા આપનાર પરમપિતા પરમાત્મા શિવ બાબાનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આજના મેળાના સમાપન દિવસે આપણા માટે ખાસ સમય નીકાળી અને આબુ વિદ્યાલયથી પધારેલ જયંતિ દીદી તથા આ મેળાનું જેમને આપણને સૂચન કરીને આટલો સુંદર બનાવ્યો તેવા સલ્લા દીદીનું પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. સમયની મર્યાદા હોવાથી હું આ બધાના પૂરેપૂરા નામ નથી લેતો, પણ આજે મંચ ઉપર પધારેલ સર્વે જેમને કંઈ ના કઈ રીતના સહયોગ આપેલો છે એવા સહયોગ માટે સન્માનિત સર્વ મહેમાનોનું હું આ તબક્કે ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. એ સિવાય આ મેળાની અંદર કોઈ એક વ્યક્તિએ કોઈ આ મેળો પૂર્ણ નથી કર્યો, પરંતુ સર્વ સબ ઝોનના ભાઈ બહેનો અને બ્રહ્માકુમારી બહેનો દ્વારા આ પૂર્ણ થયો છે. તો એ નિમિત્તે સર્વેને હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આટલો સુંદર મેળો બનાવનાર અલગ અલગ જે એજન્સીઓ છે, મંડપવાળી એજન્સી, લાઇટિંગવાળી એજન્સી, સાઉન્ડવાળા હોય, એડવર્ટાઇઝમેન્ટવાળા હોય, પાણી વ્યવસ્થા માટે હોય, ભંડારાવાળા હોય, એ બધા લોકોએ બહુ સુંદર સહયોગ આપ્યો છે. તો એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. એ સિવાય ઉત્તર ગુજરાતમાંથી પધારેલા, અલગ અલગ સેવા કેન્દ્રોમાંથી પધારેલા સર્વે બ્રહ્માકુમાર ભાઈઓ કે જેમનો અમને તન મન ધનથી સહયોગ પ્રાપ્ત થયો છે, તે સર્વનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. હરિઓમ ફ્લાવર્સમાંથી પધારેલ હિતેશભાઈ પણ મંચ પર આવશે. હિતેશભાઈ મંચ પર આવશે, સોગાત પ્રાપ્ત કરશે. કાર્યક્રમની અંતિમ પૂર્ણાહુતિની અંદર ફક્ત 1 મિનિટ આપણે પરમાત્મા પિતાની યાદમાં બેસીશું. પરમાત્મા પિતાના પરમ કૃપાથી, અનુકંપાથી આ કાર્યક્રમ ખૂબ સુંદર રીતે સફળ રહ્યો. તો 1 મિનિટ આપણે પરમાત્મા પિતાને યાદ કરી પછી કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીશું. ઓમ શાંતિ. ઉસે દેખના ઇબાદત હૈ, ઉસે સોચના इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना.